Dear students, I am Dr. Rohini Singh. I am going to explain the topic general characteristics of gymnosperms. Now, the first question that comes to our mind is, what are gymnosperms? Gymnosperms are the plants with naked seeds, means those plants in which flower-like structure is not present and seeds are without any covering. Such type of plants are known as gymnosperms. The term gymnosperm was first used by Theophrastus in his book Inquiry into Plants. Goebel called gymnosperms as phanerogams without ovary, means those plants which are without ovary. The gymnosperm word is derived from Greek word gymnos. Gymnos means naked and sperma means seeds. So the plants with naked seeds are gymnosperms. Now what is the origin of gymnosperms? If you look back into evolution, you will find that gymnosperms originated in late Paleozoic era, that is approximately 265 million years ago. They flourished well during Mesozoic era and formed dominant vegetation on the earth during this period, that is also known as the age of dinosaurs. So age of dinosaurs is Mesozoic era. Mesozoic era of evolution is known as age of dinosaurs, and during this age gymnosperm flourished very well and they were the dominating vegetation on the earth. इस इरा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स वो जिम्नोस्पर्म्स के थे. तो लॉन्ग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री शोज diverse lines of evolution during which many groups flourished and then became extinct. तो बहुत सारे एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे ग्रुप्स डेवलप हुए, फिर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में चले गए, फ्लरिश हो गए, बहुत अच्छे वेल एस्टैब्लिश हो गए और फिर धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए. तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स में भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो उस पर्टिकुलर इरा में, मीजोजोइक इरा में डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, बट लेटर ऑन दे बिकेम एक्सटिंक्ट. तो कॉर्डेटेलिस, Benneteles, they are the example of such groups which are now represented only by their fossil records, means they are no more in existence but they used to be dominating vegetation in Mesozoic era. Living fossil. There are certain groups which have living as well as fossil forms and have only one representative called living fossil. मीन्स कुछ ग्रुप्स इस तरह के हैं जिम्नोस्पर्म्स में जो जिनमें जो है फॉसिल फॉर्म भी प्रेजेंट है और लिविंग फॉर्म भी प्रेजेंट है. और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, जो लिविंग फॉर्म उनकी प्रेजेंट है आज की डेट में, उस ग्रुप के जो भी प्लांट्स अवेलेबल हैं वो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 or 2 स्पीशीज. तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स जिसमें क्या है, जो जिस ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं उस ग्रुप के बाकी सारे मेंबर खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और वो एक आध स्पीशीज ही बची है. तो इस तरह की जो स्पीशीज हैं दे आर नोन एज लिविंग फॉसिल, राइट. मतलब आज भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं जबकि उनके ग्रुप के बाकी सारे जितने भी स्पीशीज हैं वो सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. तो सच टाइप ऑफ लिविंग फॉसिल्स, they are very common, and Ginkgo biloba is one of them. It is a very well example of living fossil. So you may see in the diagram, this is the plant of this Ginkgo biloba and this is the leaf of Ginkgo biloba. General characteristics of gymnosperms. So if you see the distribution, you will find that gymnosperms are found both in temperate and tropical zones. Certain forms are also found in Arctic zones that are very cold places. Mostly they are perennials. Perennial means they grow throughout the year and they grow for many seasons. They complete their life cycle in many seasons. Xerophytics, dry habitat. Evergreen, arboreal. Arboreal means they are tree form. They are growing in the air. And woody plants. Herbaceous forms are absent. No herbaceous form and no annual form
of gymnosperm is present on the earth. कोई भी herbaceous या annual form of gymnosperm नहीं है. पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे ऐसा कोई herbaceous plant नहीं है जो gymnosperm हो. Right? World's tallest tree, giant redwood, which is known as Sequoia sempervirens. इसके जो ट्रीज हैं बहुत बड़े बड़े 125 मीटर तक की हाइट के और 30 मीटर इन गर्थ, इतने बड़े बड़े ट्रीज जो हैं दे बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म. तो इफ यू आर आस्क्ड कि टॉलेस्ट प्लांट ऑन अर्थ, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज सिकोया सेम्परवायरेंस विच इज अ जिम्नोस्पर्म. राइट, this is the plant Sequoia sempervirens. You may say this is the tallest plant on the earth, and this is the smallest gymnosperm, Gemia pygmea. This is the smallest gymnosperm. इसका जो स्टेम वगैरह है वो सारा अंडरग्राउंड है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो द ट्री इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड. ये जो अभी आपने पीछे ये देखा सिकोया सेम्परवायरेंस, इसकी बात कर रहे हैं. This tree is about 4000 years old and is found in Redwood Park of California. कैलिफोर्निया में रेडवुड पार्क में ये ट्री मिलता है. Smallest gymnosperm is Gemia pygmea. Now we come to the morphological features of the gymnosperm. तो जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफाइट. तो प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. स्टेम कैसा है? इरेक्ट है, एरियल है. इट मे बी ब्रांच्ड और इट मे बी अनब्रांच्ड. द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच्ड स्टेम इज पाइनस, और अनब्रांच्ड स्टेम अगर आप देखें तो इट इज फाउंड इन साइकस. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में नेक्स्ट रूट अगर हम बात करें तो प्लांट हैज टैप रूट सिस्टम. जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, कोई भी जिम्नोस्पर्म अगर आप देखेंगे उसकी जो रूट है वो कैसी है? टैप रूट सिस्टम है. इन सम जिम्नोस्पर्म रूट्स आर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद एल्गी. तो जिम्नोस्पर्म की रूट्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. जैसे साइकस के एग्जाम्पल अगर आप लें तो ये इट इज शोन इन द डायग्राम. साइकस में क्या है? जो रूट्स हैं वो स्पेशल कॉरल टाइप का डिजाइन बना लेती हैं और इनकी एसोसिएशन किसके साथ हो जाती है? एल्गी के साथ में. सिमिलरली अगर आप पाइनस प्लांट की रूट्स देखेंगे, उसका सेक्शन काटेंगे तो यू विल सी एसोसिएशन विद फंगस. तो इस तरह की रूट्स जिसमें फंजाई के साथ में एसोसिएशन है, such type of roots are known as mycorrhizal roots. They are found in Pinus. So in Cycas there are specialized roots which are corolloid root. They come out of the ground. We will study in the Cycas plant in detail this type of root, and in Pinus you will study mycorrhizal roots. So this corolloid root, it is associated with algae. It is found in Cycas. Mycorrhizal root, it is found in Pinus and it is associated with fungus. Now see the leaves in gymnosperms. Leaves जो है monomorphic भी हो सकती है, dimorphic भी हो सकती है. What is the meaning of monomorphic? Means one type of, कि complete plant bears only one type of leaf. Such type of leaves are known as monomorphic. And sometimes in some cases leaves are of two distinct type. If you see the case of Pinus में you will find two type of leaves. कुछ leaves कैसी होंगी? Green leaves होंगी. They are known as foliage leaves. कुछ leaves कैसी होंगी? Dry leaves. वो उनको क्या बोलते हैं? Scale leaves. Now foliage leaves जितनी भी जिम्नोस्पर्म में green leaves हैं, जो foliage leaves हैं, they may be of simple type or they may be of compound type. Simple leaves जो है लाइक अभी जो है आपने इसमें देखा, जिंगो बायलोबा में देखा, इट वॉज अ सिंपल लीफ. सिमिलरली इन केस ऑफ पाइनस इट इज अ सिंपल लीफ. बट अगर आप साइकस में देखें एज इट इज शोन इन द डायग्राम, इट इज अ कंपाउंड लीफ जिसमें क्या है? जो लेमिना है वो डाइसेक्ट कर जाता है और एक मिडरिप जो है वो बड़ी सी होती है और उस मिडरिप के आसपास छोटी छोटी लीफलेट्स लगी रहती हैं जैसे ये लगी हुई हैं. तो दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज कंपाउंड लीफ. वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीफ in detail in Cycas plant. Leaves of some gymnosperms are long, narrow needle. Needle के जैसी जो है पतली पतली बिल्कुल. Pinus में जो है इस तरह की leaves मिलती हैं. These are needle-like leaves, right? अच्छा, कुछ plants में जो है branches जो है वो दो तरह की हो सकती है. Branches जो हैं limited growth की हो सकती हैं, branches unlimited growth की हो सकती हैं.
तो those branches which have limited growth are known as dwarf shoot and branches of unlimited growth are known as long shoot. Now you see in this diagram, आपको ये डार्क जो है पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये ब्रांच, ये पूरी ब्रांच, ये सारी. Can you see this? This is a long shoot. This is long shoot of pinus. And on this long shoot, this is a spur which bears these needles. So if you pull out this one spur, this will be known as dwarf shoot. एक ड्वार्फ शूट जो है उसके ऊपर 3 नीडल लगी होती हैं पाइनस के इस स्पीशीज में. किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 2 भी होती हैं. तो जो ये यहाँ से जब आप डिटैच करेंगे इसको, तो ये 3 नीडल के साथ में एक बिल्कुल जिसको आप बंच बोलेंगे, 3 नीडल का बंच वो सेपरेट हो जाएगा, या 4 नीडल का बंच, अगर स्पीशीज में 4 नीडल हैं तो वो सेपरेट हो जाएगा. तो ये जो बंच है, दिस इज नोन एज ड्वार्फ शूट. इसको पाइनस के केस में we call it as spur also. Now we come to the anatomical characteristics of gymnosperms. तो roots have diarch और polyarch xylem in vascular cylinder. जो vascular bundle है उसमें जो xylem present है, it may be diarch means 2 arms हो सकती हैं, triarch हो सकता है 3 arm वाला, उसमें polyarch बहुत सारी arms हो सकती हैं. stem में vascular bundle देखें तो वो कैसे हैं, conjoint हैं, कोलेट्रल है, ओपन है, और वो रिंग के अंदर अरेंज्ड है. तो ऑल दीज टर्म वी विल स्टडी इन एनाटॉमी आल्सो. मैं आपको एनाटॉमी जब कराएंगे तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कंजॉइंट, कोलेट्रल और ओपन वेस्कुलर बंडल क्या है. वी विल स्टडी इट इन द प्लांट एनाटॉमी. और ये सारे वेस्कुलर बंडल स्टेम में किस तरह से अरेंज है, दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग. सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, विद द एक्शन ऑफ फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो ये 2 तरह के कैम्बिया प्रेजेंट होते हैं, फेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर. तो इन दोनों की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है. तो व्हाट इट मीन्स टू से इज सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, राइट. एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें जो है एनुअल रिंग्स बन जाती हैं, लाइट रिंग, dark ring. We will study all these in detail in the next chapters. Vessels and wood fibers are absent in the xylem and companion cells are absent in phloem. So this is the distinguished feature of gymnosperm, that phloem में क्या absent होगा, companion cell, और xylem में क्या absent होगा, vessels और wood fibers नहीं होंगे. So this is the characteristic feature of gymnosperms. जो जिम्नोस्पर्म की वुड है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो वो मेनोजाइलिक हो सकती है जैसे कि साइकस में है, या वो पिक्नोजाइलिक हो सकती है जैसे पाइनस में है. तो दोनों में डिफरेंट टाइप की वुड प्रेजेंट होती है. तो जो पिक्नोजाइलिक वुड है वो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट होती है. फोलिएज लीव्स पोजेस जीरोफिटिक कैरेक्टर्स. तो जो लीव्स हैं उनमें अभी हमने उसमें पढ़ा शुरू में, फर्स्ट फिगर जो पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल, तो वहाँ हमने जो है क्या पढ़ा कि इनकी जो हैबिट है वो कैसी है, ये जीरोफाइट है. तो जीरोफिटिक होने की वजह से इनमें कुछ अडेप्टेशंस हैं. तो जैसे थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है इनमें, वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट है, नीडल्स बिल्कुल शाइन करती हैं, अगर आप उनको बाहर से देखोगे बहुत शाइनिंग और स्मूथ हैं ड्यू टू वैक्सी कोटिंग. सिमिलरली उनमें ब्रॉड स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है. दिस इज द फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जीरोफाइट. इतनी मोटी सी जो है हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है. तो ये हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की. तो ये इसका फंक्शन क्या है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है हाइपोडर्मिस. और स्टोमेटा कैसे होते हैं, संकन होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट मिनिमाइज किया जा सके. लीव्स डू नॉट हैव लेटरल वेन्स. तो साइड्स में जो है कोई वेन्स नहीं जाती हैं, इसलिए जितनी भी ट्रांसलोकेशन है उसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होता है. वी कॉल इट एज ट्रांसफ्यूजन टिश्यू. तो transfusion tissue helps in the lateral conduction, lateral translocation of the nutrients. So we stop here, and next time we will study the reproductive features of gymnosperms. Thank you very much.